with you people. Just now we are just able to become connected with you people. Uh, First of all, I want to introduce myself, Dr. Syed Mubashir. I'm lecturer. Currently, I'm lecturer at College of Pharmacy, Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro. First of all, few things which I want to share with you people before starting the state session. डेट आजकल ये जो कोरोना वायरस का ये जो चल रहा है तो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वांट सजेस्ट आई वांट say you all people that what the measures are there to be safe from the coronavirus, so you should all apply and implement all those safety measures regarding the stay at home, social distance and all the usage of sanitizers and so on. उसके बाद we all should be thankful to Mr. Afsar Qureshi that he has given such a platform in such a pandemic situation of coronavirus in which all the people are staying at home and they are unable to do much academic activities. So we are very thankful to Mr. Afsar Qureshi. और उसके बाद ये जो है एक और पॉइंट बताना चाहूँगा बेटा कि ये जो है बेस्ट एक वे है कि सच पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्लोज हैं और कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही कि बच्चे जो हैं कुछ सीख सकें, कुछ बाहर जाके यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकें, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आइडिया है ऑनलाइन का, तो दिस इज द बेस्ट वे। इसके हवाले से मिस्टर अफसार कुरैशी को आई विल कंग्रेचुलेट दैट ऑन सच एन आइडिया, और कंग्रेचुलेशन इसलिए भी क्योंकि ही हैज गॉट मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो एक तो उसको थैंकफुल कहते हैं हम, और उसको कंग्रेचुलेशन भी हो कि उसने एक ऐसा आइडिया प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जिसमें डिफरेंट टीचर्स आकर डिफरेंट फार्मेसी के जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे, और ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली विलिंग टू लर्न something new, so they are just able to learn from this platform. Okay beta, let us start our session. Bismillahirrahmanirrahim. ये आज का जो टॉपिक है मेरा, the topic which I have been given, its name is the drug research. ठीक है बेटा, अब ड्रग रिसर्च के बारे में I want to share with you people that this is such a topic on which there should be a large discussion. It requires much time to discuss it in detail, but the policy of this internship is that I have been given just 1 hour to discuss with you people on this topic, and from that 1 hour much time has been wasted in the connection issue. So inshallah I will try my best to deliver, to discuss with people on this topic very precisely. Those points I want to share with you people which should be very important in order to memorize, in order to learn about this topic. अच्छा बेटा, सबसे पहले तो there is a question कि आप सब लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए कि ये जो टॉपिक जब आपने देखा, सुना, इंटर्नशिप के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया कि ड्रग रिसर्च, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसका मुझे रिस्पांस फीडबैक चाहिए इन द कमेंट्स बॉक्स कि आप लोग इस से जो है टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, मतलब व्हाट डू मीन, आपके दिमाग में क्या बात आई थी कि व्हाट डज मीन बाय ड्रग रिसर्च, और आपका मुझे रिस्पांस चाहिए कि आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, येस और नो में, और अगर जानते हैं तो what the point did you get in your mind that we are going to learn such things through this platform regarding this topic. So I need your feedback in the comments box. I want to see, I want to watch, I want to read all those comments that how many students, how many participants all over the Pakistan which have applied for this online internship, they are already familiar with this topic. Because obviously so many all the participants are the pharmacists or the undergraduate students, so they must know a little bit about this one. Whatever you know on this topic,
आई वांट जस्ट क्लियर फ्यू कॉन्सेप्ट्स। बेटा देखें, हम लोग फर्स्ट प्रूफ से फाइनल प्रूफ तक जितनी भी बातें ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे हैं। लेकिन एक पूरी कहानी होती है किसी भी ड्रग के पीछे। बेटा यहाँ पर मैं जो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, जो मैंने अपनी तरफ से रखा है, C2C। C, द अल्फाबेट C to C। आज हम C2C पढ़ेंगे, ठीक है। C2C, it means from the concept in the mind to the cabinet of the pharmacy। एक ड्रग का जो सफर है, जो जर्नी है, किसी साइंटिस्ट, किसी रिसर्च के माइंड से, कॉन्सेप्ट से लेकर उसका पूरा जो सफर है अप टू द कैबिनेट ऑफ द फार्मेसी, वो क्या है। अच्छा बेटा, ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है, इस पे डिटेल में बात करनी चाहिए। तो आप लोगों को एक सजेशन देता चलूं कि मेरा अपना अलग से एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है द इजी फार्माकोलॉजी, द इजी फार्माकोलॉजी। और एक मेरा फेसबुक पेज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, डॉक्टर सैयद मुबशिर ऑफिशियल। तो ये फेसबुक पेज भी है मेरा और यूट्यूब चैनल भी है। इस पे ये मैं टॉपिक जो है वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड, ये जो ड्रग रिसर्च का जो टॉपिक है, लेकिन वहां पर मैंने ड्रग रिसर्च का टाइटल नहीं दिया है, मैं वहां पर टाइटल दे रहा हूँ द जर्नी ऑफ द ड्रग, द जर्नी, द सफर, ड्रग का कॉन्सेप्ट से लेकर कैबिनेट तक ड्रग का जो आना है वो कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस टॉपिक के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर सैयद मुबशिर ऑफिशियल और द इजी फार्माकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप इसको डिटेल में जो है ना वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और वेरी सून आई एम गोइंग टू, और सीक्वेंस में पढ़े हुए वीडियोस, क्योंकि द इजी फार्माकोलॉजी जो चैनल है मेरा, उसके पीछे जो मेरा जो मकसद है, तो मैं फार्माकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करूं। तो उनमें जरूरत पड़ गई थी मुझे कि मैं ये चीज भी वहां पर अपलोड कर दूं ताकि स्टूडेंट्स के ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आते हैं इस ड्रग रिसर्च के बारे में, C2C कॉन्सेप्ट, कैबिनेट ऑफ द फार्मेसी। बेटा तो ये सफर शुरू होता है ड्रग का, अब स्टेप वाइज हम बात करेंगे और आप भले चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और कुछ चीज़ आपसे मैं पूछूंगा भी, और आप लोगों को खुद ये वो डिटेल में इन चीज़ों को देखना है। ठीक है बेटा, सबसे पहला जो काम होता है या सबसे पहला जो स्टेप होता है फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कैबिनेट में, सबसे पहला जो स्टेप होता है, आप उसका टाइटल लिख सकते हो, उसका नाम है प्री डिस्कवरी। अच्छा, डिफरेंट बुक्स में फिर डिफरेंट टाइटल्स से स्टेप्स के नाम हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज स्टेप नंबर 1 इज प्री डिस्कवरी। ये एक स्टेप है किसी भी ड्रग की रिसर्च के हवाले से। ठीक है बेटा, आपने बेटा ये चीज तो मुहावरा तो सुना होगा, तो जरूरत ईजाद की माँ होती है। ठीक है बेटा, अब कोई भी ड्रग जो है उसको ईजाद करने के पीछे कोई जरूरत तो होगी ना। वाई यू आर गोइंग टू सर्च आउट द ड्रग, वाई यू आर गोइंग फॉर रिसर्च ऑफ द ड्रग, व्हाट इज द नीड, अब कोई जरूरत होगी। अब किसी भी ड्रग को ईजाद करने के पीछे कोई जरूरत क्या है कि देयर इज सम डिजीज, देयर इज अ डिजीज, देयर इज एन एलिमेंट। जैसे कि अभी हम इसकी बात करें कोविड-19 की, तो ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जरूरत है, अब ये जरूरत, अब दिस जरूरत विल लीड टू द इन्वेंशन ऑफ सम ड्रग मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो जो प्री डिस्कवरी जो पहला स्टेप है, उसके बारे में अपना जहन जो है बना ले। उसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट, कि जो हम ड्रग डिस्कवर करेंगे उसका टारगेट कौन सा होगा। ठीक है, अब जैसे कि कोविड-19 है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई दिस इज अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द लंग्स एंड द सो ऑन। ठीक है बेटा, तो अब अगर कोविड-19 की ड्रग हमें सर्च आउट करनी है, तो पहले हमें कोविड-19 की ये जो डिजीज है, और डिजीज ह्यूमन बीइंग में डिजीज के साथ जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हैं, द रूट ऑफ द डिजीज, द पाथवे ऑफ द डिजीज, हमें
बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर टारगेट को आइडेंटिफाई करना है। अब टारगेट से यहाँ पर क्या मुराद है, क्या मकसद है कि दैट जीन और दैट रिसेप्टर और दैट मैकेनिज्म व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज लेट सपोज कोविड हमें हमारे लेट सपोज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है ना वो अफेक्ट कर रहा है। तो अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे लेट सपोज लंग्स हैं, अगर वो अफेक्टेड हो रहे हैं तो अब लंग्स में वो हम टारगेट जो है वो टिश्यू, वो रिसेप्टर, वो प्रोटीन, वो एंजाइम, we will find out, we will sort out all those routes and pathways which are involved in the incidence of the disease। ठीक है बेटा, ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज इन्वॉल्व है, तो वो हमारा टारगेट होगा। वंस द टारगेट इज फाइंड आउट, लेट सपोज मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कि हमें इन्फ्लेमेशन होता है या जो पेन, तो उसके पीछे क्या है, COX-2 एंजाइम जो है ना, COX-2 एंजाइम इज देयर व्हिच इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। तो जब पेन और इन्फ्लेमेशन इन साइन सिम्टम्स को फाइंड आउट किया जा रहा था, इनके टारगेट्स को, इनके पाथवेज को, तो हमें क्या चीज मालूम हुई थी, COX-2 इनहिबिटर, COX-2 enzyme, COX-2 enzyme which was producing the prostaglandins। So this was the mechanism, this was the route, this was the pathway, this was the all those targets which were involved in the incidence of this pain and symptoms। तो ये फाइंड आउट किया गया। जैसे कि कैल्शियम चैनल्स होते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर को जो है हाई करने में, हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं इन्वॉल्व। तो कैल्शियम चैनल इज व्हाट, दिस इज द टारगेट। जैसे कि आज ड्रग्स है ना हमारे पास, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जब हाइपरटेंशन किसी को हुआ, तो हाइपरटेंशन डिजीज में जो चीजें इन्वॉल्व थी उसमें एक क्या था, टारगेट हमारा कैल्शियम चैनल्स। तो कैल्शियम चैनल्स जो ब्लॉकर्स बने वो तब बने जब पहले कैल्शियम चैनल्स फाइंड आउट हुए, आइडेंटिफाई हुए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी ड्रग डिस्कवरी में, किसी भी ड्रग रिसर्च में, सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। और टारगेट्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रीजन्स होते हैं, बायोलॉजिकल रीजन्स आप बोल सकते हो, टारगेट बोल सकते हो, ड्रग टारगेट बोल सकते हो। उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, हमारे पास काफी टेक्निक्स होती हैं जिनमें हम वो टिश्यूज को आइसोलेट करते हैं, सेल्स को आइसोलेट करते हैं, फिर उनकी स्टडी हम करते हैं, रेस्पॉन्स देखते हैं कि कौन सी चीजें जो इन्वॉल्व हैं। ठीक है बेटा, अब किसी भी डिजीज की इन्वॉल्वमेंट में जरूर नहीं है कि कोई एक रिसेप्टर या एक पाथवे इन्वॉल्व हो, सो मेनी पाथवेज में भी इन्वॉल्व इन द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज। मैं आपको मिसाल दे दूं, अभी आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, तो देयर आर सो मेनी क्लासेस ऑफ द ड्रग्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं आपके पास, ARBs हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, और जो है वेजोडाइलेटर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, पाथवेज हैं, सारे क्या हैं, टारगेट्स हैं। तो जितने भी टारगेट्स हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उन टारगेट्स के अब ये जो है पहला जो स्टेप है प्री डिस्कवरी। प्री डिस्कवरी में दो चीजें होती हैं, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट्स, और दूसरा वैलिडेशन ऑफ द टारगेट। अब वैलिडेशन ऑफ टारगेट में क्या होता है कि जितने भी टारगेट्स इन्वॉल्व हैं उन सब में से हम कोशिश करते हैं कि कौन सा टारगेट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। वैसे तो बहुत सारे टारगेट्स हैं, सबका कोई ना कोई लिंक है डिजीज के साथ, लेकिन ऐसा हम टारगेट फाइंड आउट करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि जो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड हो। ठीक है बेटा, और जब हम कोई ड्रग मॉलिक्यूल दें तो उस ड्रग मॉलिक्यूल को वो रिसेप्टर या वो टारगेट कोई रिस्पांस भी दे। ठीक है बेटा, तो वैलिडेशन भी की जाती है प्री डिस्कवरी में। अब मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, थोड़ा बेटा शॉर्टली मैं बताता जाऊंगा क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है। इस टॉपिक पे अगर आपको डिटेल में चीजें चाहिए तो इंशाल्लाह यू कैन वॉच एट माय फेसबुक पेज डॉक्टर सईद मुबशिर ऑफिशियल एंड माय जो यूट्यूब चैनल दैट इज द इजी फार्माकोलॉजी। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला स्टेप। इसमें क्या हो गया भाई, जरूरत जो इजाद की माँ होती है वो जरूरत का हमें पता चल गया कि भाई जरूरत ये है। अब इजाद की तरफ हम जाते हैं, ड्रग डिस्कवरी। अब हिस्टोरिकली अब देखें तो ड्रग अब जो दूसरा स्टेप है उसको हम टाइटल देंगे डिस्कवरी ऑफ द ड्रग। पहले स्टेप का नाम क्या था, प्री डिस्कवरी। डिस्कवरी से भी पहले की एक दुनिया है जिसमें हम डिजीज को स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरा स्टेप क्या है, डिस्कवरी ऑफ द ड्रग। अब ऑब्वियसली बेटा ड्रग मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने के लिए उसके सोर्सेज होने चाहिए। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो साइंटिस्ट रिसर्च किया नेचुरल सोर्स,
नेचुरल सोर्स में प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, माइक्रोब्स आ गए, मेरीन एनिमल्स आ गए, तो बहुत सारे सोर्सेज, सिंथेटिक सोर्सेज हैं, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक सेमी सिंथेटिक चीजें हैं। तो काफी सोर्सेज हैं, काफी ड्रग सब्सटेंसेज हैं, काफी केमिकल्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच केमिकल कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑन सच सिलेक्टेड टारगेट। ठीक है बेटा, हम डिफरेंट ड्रग्स को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट केमिकल्स को एक्सपेरिमेंट के अंदर लाकर हम उनका इफेक्ट, क्योंकि हमने अभी टारगेट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, टिश्यू हमने या प्रोटीन है या जो भी जीन है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइसोलेट कर लिए। अब हम ड्रग मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो कलेक्ट करेंगे, उनका इंटरेक्शन करवाएंगे। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑल दोज केमिकल्स। बेटा मेरे पॉइंट समझिएगा, इस तरीके से बाय इंटरेक्टिंग द ड्रग मॉलिक्यूल्स विद द टारगेट वी आर गोइंग टू नो दैट दिस ड्रग मॉलिक्यूल और दिस केमिकल हैज सम लिंक, हैज सम इफेक्ट ऑन दैट टारगेट। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं एक बेटा वर्ड बोलने जा रहा हूं जिसका नाम है लीड कंपाउंड। लीड कंपाउंड, ये चीज नोट कर लीजिए कि ऐसे सारे ड्रग्स, ऐसे सारे केमिकल्स, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स which have potential to produce effect on such selected target। ठीक है बेटा, ये जो दूसरा स्टेप जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं, दूसरे स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं नेचर के अंदर सिंथेटिक जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी देखते हैं कि उनका कोई इफेक्ट है टारगेट के ऊपर। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ दिस मॉलिक्यूल हैज द इफेक्ट ऑन सच सिलेक्टेड टारगेट, तो उस हर मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाए, लीड कंपाउंड। यहाँ पर लीड कंपाउंड जो है ना वो हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो ये होता था कि इंटेंशनली, एक तो इंटेंशनली आइडेंटिफाई करना, और एक तो है कि भाई एक्सीडेंटली, जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का हमने नाम सुना, जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट था, इट वाज आई थिंक, तो ही वाज स्टडीइंग ऑन द स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। वो अपनी एक स्टडी कर रहा था स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर, अपनी स्टडीज कर रहा था। लेकिन उसके साथ मसला ये था कि बार बार वो जो उसकी कल्चर थी, प्लेट्स थी, वो कंटामिनेट हो जाती थी एयरबॉर्न मोल्ड के साथ। एक मोल्ड था जो एयरबॉर्न था, तो उसके साथ वो उसकी कल्चर जो है ना कंटामिनेट हो जाती थी। लेकिन एक दफा उसने देखा कि 1 or 2 plates which were contaminated with the airborne mold, तो उसने देखा कि वो जो बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस वो बर्स्ट हो चुके थे, that were killed। तो he thought that there is something in such mold which is causing the bursting of bacteria। Then he identified and extracted from that mold and he named that product as the penicillin। तो एक तो एक्सीडेंटल रिसर्च हो जाती है, एक इंटेंशनली जो है ड्रग रिसर्च में साइंटिस्ट हिस्सा लेते हैं, जिसमें वो जो है नेचुरल सोर्स से, या अभी तो ऐसा है कि भाई सिंथेटिक कंप्यूटर मॉडल्स यूज होते हैं और ड्रग मॉलिक्यूल्स जो है ना वो फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा स्टेप क्या है, ड्रग रिसर्च। ड्रग रिसर्च में एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, लेकिन बेटा यहाँ पर भी एक और बात है, जैसे कि पिछले वाले स्टेप में वैलिडेशन ऑफ टारगेट्स थी कि जितने भी टारगेट्स हैं उनमें से मोस्ट लाइकली, तो इसमें भी यहाँ पर भी ये होता है कि वैलिडेशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, जितने भी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी वैलिडेशन के मोस्ट लाइकली और ज्यादा पोटेंशियल कौन सा है, तो वो हम चूज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो सेकेंड स्टेप है ड्रग रिसर्च का बेटा, यहाँ पर ये होता है कि थाउजेंड्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, थाउजेंड्स में। इट मे बी 5000, इट मे बी 10,000, क्योंकि बेटा नेचर तो बहुत बड़ी है, उसमें काफी मॉलिक्यूल्स अल्लाह पाक ने पैदा किए हुए हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द टेंडेंसी, व्हिच हैव द पोटेंशियल टू इफेक्ट ऑन दैट ड्रग, ठीक, ऑन दैट टारगेट। तो बेटा इस ड्रग रिसर्च के स्टेप के कंप्लीट होने पर हैंडफुल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई का मकसद ये है कि उनके पास पोटेंशियल है कि वो टारगेट के साथ उनका इंटरेक्शन हो सकता है, उनके पास उनका इंटरेक्शन है। ठीक है बेटा, बस इस हद तक हम मालूम करते हैं कि भाई दे हैव द पोटेंशियल।
और नेचर से या सेमी सिंथेटिक वे से ऐसा हर मॉलिक्यूल जो हम आइडेंटिफाई करें कि भाई इट हैज अ पोटेंशियल टू इफेक्ट ऑन द टारगेट, उस ड्रग मॉलिक्यूल का यहाँ तक नाम क्या होता है, लीड कंपाउंड। ठीक है बेटा। अब थाउजेंड्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं व्हिच हैव द कैपेबिलिटी। ठीक है बेटा। अब जो तीसरा स्टेप होता है जिसकी तरफ हम जाते हैं वो होता है प्री क्लिनिकल स्टेज और प्री क्लिनिकल फेज। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताता चलूं बेटा कि ये रिसर्च जो है ना वो कौन कर रहा है और कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। अब देखिए जैसे कि कोविड-19 है, अब ये सडन एक पेंडेमिक सिचुएशन है। अब इसको देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट गर्म हो चुकी है कि भाई हम वो पहले, अब जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें एक डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी होता है जिसका काम यही होता है कि रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना। तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती हैं अपना पैसा और वो रिसर्च जो लेबोरेटरीज है, स्पेशली जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनली, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लेबोरेटरीज होती है जहाँ पर रिसर्च हो रही होती है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं कि अपना पैसा उन लेबोरेटरीज को देती हैं कि भाई वी आर इन्वेस्टिंग, यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड आउट अ ड्रग मॉलिक्यूल। जैसे अभी कोविड-19 है तो अभी कोविड-19 का ट्रीटमेंट हर फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहेगी कि इसका ट्रीटमेंट मैं फाइंड आउट कर लूँ। तो अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करेंगी, दे विल इन्वेस्ट, वो पैसा देंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, भाई हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप लोग जस्ट वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ के जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जिनकी रिसर्च है, जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर है, तो उनको पैसा देते हैं। ठीक है बेटा, तो वो रिसर्च करते हैं। अब जो दूसरा फेज मैंने आपको बताया ड्रग डिस्कवरी, अब तीसरा फेज है प्री क्लिनिकल फेज। अब प्री क्लिनिकल फेज में क्या होता है बेटा कि जो पिछला वाला जो ड्रग डिस्कवरी में जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिफाई हुए थे उन सबको टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन प्री क्लिनिकल फेज में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो सारे के सारे एनिमल्स पे किए जाते हैं। अब इसके अंदर दो हिस्से हैं, इन विट्रो एंड इन वीवो। प्री क्लिनिकल जो फेज है इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक है इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो यू नो के टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर करते हैं। ठीक है बेटा। और इन विवो हम एनिमल्स को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं जो हमारे ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं। तो जितने भी थाउजेंड्स ऑफ हमारे जो लीड कंपाउंड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उनको हम टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर क्लिनिकल फेज के अंदर हम मेन चीज बेटा जो आपको नोट डाउन करनी है बेटा, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, लेकिन यहाँ पर जो मैं शॉर्टली बताना चाह रहा हूँ तो वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। तीसरा फेज कौन सा है, प्री क्लिनिकल, तीसरा स्टेप। उसका जो मेन जो पर्पज है क्या है, तो फाइंड आउट द एफिकेसी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। एफिकेसी को मालूम किया जाता है प्री क्लिनिकल फेज में, जो मेन मकसद होता है। तो जितने भी थाउजेंड्स ऑफ लीड कंपाउंड्स जो पिछले स्टेप में आइडेंटिफाई हुए थे तो उनको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके एनिमल्स के ऊपर, एनिमल टिश्यूज में उनकी एफिकेसी मालूम की जाती है। ठीक है बेटा। लेकिन क्योंकि अब प्री क्लिनिकल फेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है तो वो स्टेप ऐसे हम जो है ना ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक इस प्री क्लिनिकल फेज में हम एफिकेसी के साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल भी आइडेंटिफाई कर लें। मेन मकसद तो होता है बेटा, मेन मकसद होता है एफिकेसी, लेकिन क्योंकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, अच्छा बेटा स्टेप नंबर 1 इज प्री डिस्कवरी क्लिनिकल ट्रायल्स। बेटा आई एम कमिंग ऑन दैट वन, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स, द नेम्स ऑफ द स्टेप। नंबर 1 प्री डिस्कवरी, जिसमें हम टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, और सेकंड स्टेप इज ड्रग डिस्कवरी, जिसमें हम ड्रग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है बेटा। और जो तीसरा स्टेप होता है प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में हम जितने भी लीड कंपाउंड्स उनको एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करके और उन ड्रग मॉलिक्यूल्स की एफिकेसी मालूम करते हैं। ठीक है बेटा।
लेकिन साथ ही हमें सेफ्टी भी मालूम करनी पड़ जाती है, वो हमारी मजबूरी होती है। वो इसलिए मजबूरी होती है हमारी क्योंकि जब हम चौथे स्टेप की तरफ जाएंगे ना, तो चौथा स्टेप होता है कि वो सेम हम जो है ना अप्लाई करते हैं ह्यूमन बीइंग पर। तो ह्यूमन बीइंग पर तब तक हमें कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हमें जो है अलो नहीं करेगी जब तक हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी मालूम ना कर लें। तो ये हमारी मजबूरी होती है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी हम मालूम करते रहें थर्ड स्टेप पे, प्री क्लिनिकल स्टेप में। ठीक है बेटा। तो एनिमल्स के ऊपर ये जो फेज है दो तरीकों से होता है, इन विट्रो भी होता है, इन विवो भी होता है। ठीक है बेटा, इसका भी अपना टाइम पीरियड होता है कि जब तक ये सारी। अच्छा, ये वो स्टेप है जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, प्लीज इसको गौर से सुनिएगा कि जो सेकंड स्टेप था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिफाई हुए थे, जो क्या हुए थे कैंडिडेट थे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल मिसाल भी देना चाह रहा हूँ। जैसे कि कोई जॉब वैकेंसी आती है, लेट सपोज वैकेंसीज है पांच वैकेंसीज है। अब एडवर्टाइजमेंट होती है तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो समझते हैं कि हाँ भाई आई एम एलिजिबल, आई हैव सच एजुकेशन, तो वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। तो वो क्या बन जाते हैं, उस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स बन जाते हैं, कैंडिडेट्स बन जाते हैं। अब थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस आती हैं। तो लाइकवाइज जब फर्स्ट स्टेप के बाद कोई ड्रग मॉलिक्यूल और सॉरी कोई टारगेट, फर्स्ट प्री डिस्कवरी में जब भी कोई टारगेट आइडेंटिफाई होता है तो नेचर में मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई देयर इज अ टारगेट आइडेंटिफाइड। सो हर ड्रग मॉलिक्यूल समझता है कि आई एम एलिजिबल फॉर दैट वन, और उसके पास पोटेंशियल होता है। ठीक है, उसके पास पोटेंशियल होता है कि भाई जो है हम टारगेट के साथ जो अटैच हो सकते हैं, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स को एज अ कैंडिडेट हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स की क्या होती है, स्क्रूटिनी होती है। सबने अप्लाई तो कर दिया लेकिन स्क्रूटिनी होती है, उनके स्क्रूटिनी करके जो एलिजिबल होते हैं उनको रखते हैं, बाकी जो एलिजिबल नहीं होते उनको जो है ना ऑमिट कर दिया जाता है। फिर एक एंटी टेस्ट होता है या रिटन टेस्ट होता है, उसमें जो क्वालिफाई करते हैं तो वो कंसीडर होते हैं, बाकी रिड्यूस ऑमिट किए जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो फिर इंटरव्यू के बाद जाके 5 जो कैंडिडेट जो वैकेंसीज थी उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो ये सेम सीनियर यहाँ पर है कि जब टारगेट डिस्कवर हुआ था तो नेचर के में मौजूद जितने भी ड्रग मॉलिक्यूल्स थे तो उन्होंने क्या किया था कि भाई अपने खुद को जो है ना वो एलिजिबल करा दे दिया, तो उन सबको हमने एज ए लीड कंपाउंड हमने ले लिया था। अब जो थर्ड स्टेप है प्रीक्लिनिकल फेज, जिसमें हम जो है प्रीक्लिनिकल में हम एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जितने भी हैं कैंडिडेट्स थे उन सब की स्क्रूटनी करके, सिर्फ बेटा यहाँ पर ये मेन पॉइंट समझिएगा, और ये एक स्टैंडर्ड जो है ना वो डेटा बता रहा हूँ आपको, एक स्टैंडर्ड डेटा जिसके मुताबिक आपको मैं एक रेफरेंस भी दे दूं कि रेफरेंस से आई विल कोट द रेफरेंस कि उन अगर लेट सपोज कि सेकंड स्टेप में ड्रग डिस्कवरी का जो था, जब लीड कंपाउंड्स हमने डिस्कवर आइडेंटिफाई किए थे, लेट सपोज 5000 कंपाउंड्स ऐसे थे जो लीड कंपाउंड्स थे जिनके पास पोटेंशियल था। तो जब थर्ड फेज में आते हैं ना प्री क्लिनिकल में, जब हम एनिमल्स पे स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि बेटा उनमें से सिर्फ 5 ड्रग्स सिलेक्ट होती है आउट ऑफ 5000 में से सिर्फ 5 ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्री क्लिनिकल फेज में अप्रूव होती हैं कि भाई दीज आर मच सूटेबल एंड these have the much very close efficacy and these are safe from safety point of view। क्योंकि प्री क्लिनिकल में हम दो चीजें, एक तो एफिकेसी, एक सेफ्टी। तो 5000 में से एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट करते हुए सिर्फ 5 ड्रग्स अप्रूव होती हैं बेटा। ठीक है बेटा, 5000 में से सिर्फ 5 की स्क्रूटिनी हुई है, लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। अब सेकंड स्टेप क्या है, क्लिनिकल फेज। ठीक है बेटा, प्री क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल। आपने सब स्टूडेंट्स ने, जहां तक मेरा ख्याल है कि क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल फेज का नाम सुना होगा। अब जो क्लिनिकल फेज है उसको फिर बेटा कैटेगराइज किया गया है 4 फेजेस में। लेकिन सुने, प्री क्लिनिकल के बाद जब हम क्लिनिकल फेज में जाते हैं तो एक बीच में एक और चीज आ जाती है, वो होती है एप्लीकेशन। जो ड्रग डेवलपर्स होते हैं ना, वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं
एप्लीकेशन लिखते हैं टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जैसे कि अब मैं बात करूं, अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में जो ड्रग डेवलपर्स जो एप्लीकेशन देते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, तो उस रेगुलेटरी अथॉरिटीज का नाम है एफडीए। एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। एफडीए को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। कौन देता है? जो ड्रग डेवलप कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लिखते हैं, और प्री क्लिनिकल स्टडी के अंदर जितना भी उन्होंने सॉर्ट आउट जो चीजें की हैं वो सारी की सारी डेटा एफडीए को देते हैं और एप्लीकेशन देते हैं। और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। नाम लिख ले बेटा, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम यह है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अच्छा, अगर हम जो है दूसरे जो ममालिक हैं जैसे कि यूके है, तो यूके में उसका नाम जो है ना दूसरा हो जाता है, क्लिनिकल ट्रायल एक्सेप्शंस। क्लिनिकल ट्रायल एक्सेप्शंस ये एप्लीकेशन का नाम है जो ड्रग डेवलपर्स देते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। अमेरिका में क्या है? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। और यूके में क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सेप्शन। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स अथॉराइजेशन। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंट नाम है उस एप्लीकेशन के जो हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडी में जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किए वो उनको देते हैं और उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें इजाजत दो कि अब हम इस ड्रग, जो 5 ड्रग्स हमने सिलेक्ट किए हैं, हम इनको ह्यूमन बीइंग पर टेस्ट करके देखें, क्योंकि मेन दवा तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए बना रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स पर टेस्ट करने के लिए, या जो चौथा स्टेप है क्लिनिकल फेज, क्लिनिकल फेज में एंटर होने के लिए, एंट्री के लिए इजाजत की जरूरत पड़ती है, जो इजाजत हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू चाहिए। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिफरेंट कंट्रीज में अपनी अपनी है, जैसे कि अब जो है, अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा, वो जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपको पता है कि कितने पेजेस की होती है? ये मेन पॉइंट आप समझ लें। जो एप्लीकेशन ड्रग डेवलपर्स देते हैं किसको? रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जो एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन में बी कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख पेजेस। 1 लाख पेजेस के की एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें सारी डेटा होती है। और एफडीए या जो भी रेगुलेटर है वो सबको जो है वो देखती है, फिर अप्रूवल देती है कि हाँ भाई यू मे लीड टू क्लिनिकल फेज। अब बेटा मैं थोड़ा शॉर्टली बताता हूँ, जो क्लिनिकल फेज होता है तो उसको जो है ना वो डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में। क्लिनिकल फेज को जो डिवाइड किया गया है वो 4 फेजेस में। वेरी शॉर्टली बताता जाओ, वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन आप जस्ट उनको नाम नोट डाउन कर लें और उनका जो काम नोट डाउन कर लें। ठीक है बेटा, नाम और काम उन फेजेस का। क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल जो फेज है उसके 4 फेजेस हैं, 4 स्टेप्स हैं। उसमें नंबर 1 जो फेज है, फेज नंबर 1 उसका नाम है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी फेज नंबर 1 का नाम है। दूसरे का नाम क्या है? क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। तीसरे का नाम है क्लिनिकल ट्रायल्स, और चौथे का नाम है पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज। ये 4 फेजेस होते हैं जो क्लिनिकल स्टडीज में किए जाते हैं। जो हमारा चौथा स्टेप होता है ना, प्री क्लिनिकल के बाद जो क्लिनिकल आता है, अब उस क्लिनिकल को कैटेगराइज किया है सब क्लासेस में। एक फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। जो फेज 1 है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फेज 2 क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज। अब फेज 1 जो है उसका जो मेन जो टारगेट है, जो पर्पज है, दैट इज द टू एस्टेब्लिश द सेफ्टी। सेफ्टी को एस्टेब्लिश किया जाता है। अब ये इसका मकसद सुन लें। अब इसमें बेटा फेज 1 में होता क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग जिन पर स्टडी की जाती है वो पेशेंट्स नहीं होते, वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और उनकी एज 18 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक होती है। 18 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक होती है। और टोटल कितने ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व किए जाते हैं? फ्रॉम 20 to 80। अब डिफरेंट बुक्स में थोड़ा नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो एवरेज नंबर है 20 से लेकर 80 ऑब्जेक्ट्स में भी इन्वॉल्व, और उनकी एज क्या होनी चाहिए? 18 to 45। और इसका जो मेन मकसद है तो वो सेफ्टी को एस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है बेटा, या एस्टेब्लिश द डोज एस्टेब्लिश किया जाता है, सच डोज एट विच फर्स्ट अपीयर, मतलब वो डोज कंफर्म किया जाता है जिससे टॉक्सिसिटी स्टार्ट होगी।
टॉक्सिसिटी में स्टार्ट टू अपीयर, जैसे ना एमटीसी होती है मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, तो मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है ना या ऐसा डोज हम फाइंड आउट करते हैं जहां से टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो सकती है। तो ये वेरी शॉर्टली मैंने बता दिया क्योंकि बेटा टाइम बहुत कम है। फेज 2 का नाम है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है बेटा, इसमें जो है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग हम इन्वॉल्व नहीं करते, पेशेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है मेन जो इसका जो पर्पज है टू एस्टेब्लिश द एफिकेसी एंड डोज। टू एस्टेब्लिश द एफिकेसी, एक तो उसके पास एफिकेसी क्या है ड्रग की, और अब बेटा यहाँ पर मैं एफिकेसी क्या है, पोटेंसी क्या है, ये सारी चीजें भी अगर आपको मालूम करनी है कि ये इनमें डिफरेंस क्या है, तो यू मे ज्वाइन माय फेसबुक पेज डॉक्टर सैयद मुबशर ऑफिशियल और माय यूट्यूब चैनल इजी फार्माकोलॉजी, जहाँ पर मैंने एफिकेसी पोटेंसी इन सब का डिफरेंस जो इंशाल्लाह यू मे लर्न फ्रॉम देट। ठीक है बेटा, तो फेज 2 का जो मेन काम होता है, बस ये चीज आप नोट कर लें कि इसका नाम है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, और इसका काम क्या है टू एस्टेब्लिश द एफिकेसी एंड टू एस्टेब्लिश द डोज। ठीक है ना, कौन सा डोज दिया जाए। ठीक है बेटा, और जहां पर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनका जो नंबर में वेरी फ्रॉम 80 ईयर्स टू 100, सॉरी फ्रॉम 80 टू 100 पेशेंट्स में बी इन्वॉल्व इन दिस वन। ठीक है बेटा, फेज 3 जिसका नाम है क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि इसका जो मेन पर्पज होता है वो तो होता है एफिकेसी ही। ठीक है ना, एफिकेसी को वेरीफाई करना, पहले भी एफिकेसी लेकिन अब एफिकेसी को और ज्यादा वेरीफाई करना, और यहाँ पर सेफ्टी को भी हम कंसीडर करते हैं एफिकेसी। अच्छा बेटा, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो सर पीछे वाले स्टेप में भी एफिकेसी, यहाँ पर भी एफिकेसी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ा रहे हैं। पहले नंबर ऑफ पेशेंट्स 80 टू 100 से अब नंबर ऑफ पेशेंट्स में गो अप टू मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम पेशेंट्स जो है ना वो इसमें जो है हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा पेशेंट्स। अब जितने ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, जितनी ज्यादा सैंपलिंग होगी तो उतने ज्यादा हमें जो मिलेंगे, और इसमें हम सेफ्टी को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो तीसरा स्टेप है, यहाँ से फिर एक और चीज इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर अभी फेज, यहाँ के जो चौथा स्टेप है जो पोस्ट मार्केट, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लिनिकल फेज के अंदर जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो भी मैंने पढ़ा, अब फेज 3 जिससे कंप्लीट होगा फिर क्या होगा, सेम ड्रग डेवलपर्स एफडीए से रब्ता करेंगे या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनसे रब्ता करेंगे, उनको एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। अब उस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन, अगर यूएस की बात करेंगे, हम अमेरिका की बात करेंगे, तो अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। लेकिन अगर हम यूके की बात करेंगे तो मार्केटिंग अथॉराइजेशन एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, तो डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने अपने नाम होते हैं। फेज 3 मुकम्मल कर दिया जिसमें उन्होंने से हम ह्यूमन बीइंग में यूज कर सकते हैं, तो वो उनको उनसे अप्रूवल मांगते हैं कि अब हमें इजाजत दे दो कि अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। तो वो एप्लीकेशन भेज देते हैं, लेकिन साथ साथ वो जो फेज 4 है उस पर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उसका नाम क्या है, पोस्ट अप्रूवल। लेकिन वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक अप्रूवल ना मिल जाए। तो फेज 3 के एंड पर एप्लीकेशन भेजी जाती है एफडीए को, ताकि वो अप्रूव करके दे। अब एफडीए के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो उनको डेटा देखकर जो है बेटा मार्केटिंग अथॉराइजेशन एप्लीकेशन, ये नाम है इसका यूके में। ठीक है बेटा, जिसने भी पूछा है। तो अब एफडीए के पास 3 ऑप्शन होते हैं, हाँ अप्रूव कर दिया डेटा देखकर, दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया, नहीं भाई मुझे नहीं करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसके बाद ये होता है कि भाई एक वो फॉर्म भेजते हैं उनको, जिसका एक नाम है, तो फॉर्म उनको भेज देते हैं एफडीए वाले ड्रग डेवलपर्स को, भाई आपकी हम ड्रग इस वजह से अप्रूव नहीं कर रहे, ये थोड़ी लैकिंग है आपके इसमें ड्रग में, तो ये थोड़ी इंप्रूव करो। अच्छा, एफडीए वाले उनको रीजन भी बताते हैं कि ये हम इस वजह से नहीं कर रहे, फिर उसका ट्रीटमेंट भी बताते हैं कि भाई इसकी रेमेडी ये है, आप इसको यूं ठीक करके हमें दो, फिर हम आपकी अप्रूव कर देंगे। तो 3 ऑप्शंस होते हैं एफडीए के पास या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। तो जब वो अप्रूव होकर आती है तो वो बाय ड्रग डेवलपर से स्टार्ट हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो मैन्युफैक्चरिंग उसके स्टार्ट हो जाती है।
मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, अप्रूवल हो गया, अब जो फेज 4 है पोस्ट अप्रूवल फेज भी होता है, उसको भी वो ड्रग डेवलपर्स कंटिन्यू रखते हैं। उसका सिर्फ मकसद ये होता है बेटा कि जो है अच्छा बेटा, यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा है, हाउ मच टाइम इट टेक्स फ्रॉम स्टेप 3 टू स्टेप 4। जो स्टेप 3 है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल से जब बेटा एप्लीकेशन जाती है ना एफडीए के पास, तो एफडीए यहाँ पर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइम पीरियड्स लिखे हुए हैं। कहीं पर ऐसा लिखा है कि 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक, क्योंकि एफडीए बेटा सारी डेटा को एनालाइज करता है तो वो टाइम मांगता है, ठीक है ना। तो कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक लग सकते हैं उनकी ड्रग को अप्रूव करने के लिए टू बी मैन्युफैक्चर्ड फेज 3 के बाद। जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जो एप्लीकेशन जाती है अप्रूवल के लिए, अब ये वाली एप्लीकेशन किस चीज की है, टू अप्रूव फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। अब हमें अप्रूव करके दो भाई कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है बेटा। तो ये उसके अप्रूवल में 6 मंथ से लेकर जो है ना वो 2 इयर्स तक टाइम लग सकता है। अप्रूव हो गई, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, मार्केट में चीजें आ गई, लेकिन अब पोस्ट अप्रूवल पोस्ट मार्केटिंग भी स्टडीज होती रहती हैं जो फेज 4 कहलाती है, ठीक है बेटा। उसमें ये होता है कि एक्सपीरियंस को ब्रॉडन किया जाता है। अगर पीछे हमने 1000 पेशेंट्स पर अप्लाई किया था तो अब हम 5000 कर देंगे, ठीक है बेटा। और हम फीडबैक लेते रहेंगे क्योंकि अब हमारी ड्रग बन के मार्केट में जा चुकी है, पेशेंट्स उसको यूज कर रहे हैं, तो अब फीडबैक हम लेते रहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि काफी ड्रग्स ऐसी हुई अभी पाकिस्तान में जिनकी जो टॉक्सिसिटी काज करवा रही थी, तो उनको मार्केट से वापस बुलाया गया था। तो ये क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग एवेल्युएशन, उसको मार्केट से वापस बुलाया जाता है, उनकी फिर स्टडी की जाती है कि क्या रीजन था, क्या सिर्फ फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू था या फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इशू नहीं था। तो सेफ्टी, इफिकेसी, ये सारी चीजें ब्रॉडन जो है लार्ज स्केल पर कंटिन्यू रहती है इवन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द ड्रग। तो ये होती है बेटा कहानी फ्रॉम कॉन्सेप्ट अप टू द कैबिनेट। और पता है इसमें कितना टाइम लगता है, इट में कॉस्ट अप टू 12 टू जो है 15 ईयर्स, 12 टू 15 ईयर्स लग सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट से लेकर कैबिनेट तक आने तक 12 टू 15 ईयर्स लग सकते हैं। और जो है कॉस्ट जो है डिफरेंट बुक्स में जो है डिफरेंट कॉस्ट लिखी हुई है, 1.15 बिलियन जो है तक मिलियंस में जो कॉस्ट आ सकती है किसी भी ड्रग को कॉन्सेप्ट से लेकर और कैबिनेट तक लाना। एक और पॉइंट बेटा एफडीए के बारे में बताता चलूं कि एफडीए 1938 में एस्टेब्लिश हुआ था और एफडीए के काम क्या है, ड्रग्स को अप्रूव करना, ठीक है बेटा। और मैंने आपको बताया प्री क्लिनिकल फेज में अगर 5000 ड्रग्स हैं तो उनमें से सिर्फ कितनी अप्रूव होती हैं, 5 प्री क्लिनिकल में। आपको पता है 1938 से लेकर 2013 तक जितने भी साल हैं, इतने अरसे में जो सिर्फ ड्रग्स जो है ना जो अप्रूव की है एफडीए ने, जो एफडीए 1938 में एस्टेब्लिश हुआ था तब से इसने ड्रग्स को अप्रूव करना स्टार्ट किया है। तो 1400 मतलब इसके अनकरीब जो है ड्रग्स जो है ना वो ड्रग्स जो है ना वो अप्रूव हुई हैं। 1938 से लेकर 2013 तक की रिपोर्ट है कि सिर्फ 1400 ड्रग्स अप्रूव हुई हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जैसे जो है 1938 से 2013 तक, ठीक है बेटा। और प्री क्लिनिकल में अगर 5000 ड्रग्स हैं तो 5 जो है ना वो अप्रूव होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो 1400 ड्रग्स जो अप्रूव हुई हैं, 1400 ड्रग्स जो अप्रूव हुई हैं टिल 2013 तक, तो प्री क्लिनिकल में फेज के दौरान कितनी ड्रग्स रिव्यू हो चुकी होंगी, यू नो इट इज 7.3 मिलियन ड्रग मॉलिक्यूल्स, 7.3 मिलियन लीड कंपाउंड्स आर रिव्यूड इन प्री क्लिनिकल फेज फ्रॉम 1938 टू 2013 तक की रिपोर्ट है कि 7.3 मिलियन ड्रग मॉलिक्यूल्स आर रिव्यूड इन प्री क्लिनिकल फेज, जिनमें से सिर्फ जो मार्केट तक ड्रग पहुंची है वो 1400 पहुंची है। तो कैन यू इमेजिन, तभी अगर कोई सवाल पूछता है कि भाई ड्रग्स इतनी महंगी क्यों है, भाई इतना ज्यादा टाइम लगता है, इतना ज्यादा खर्चा आता है
जिसकी वजह से जो है ना वो इतना जो है ना वो महंगी हो सकती है क्योंकि उनके रिसर्च में टाइम लगता है। ठीक है बेटा, so this is our scenario which I have tried my best to discuss you with Bill in very short time. This is, but in detail, if you want to learn much more regarding this topic, then you may join me on my own personal Facebook page, Dr. Saeed Mubashir Official, and the Easy Pharmacology on my YouTube channel. So you may come and join and subscribe the channel and to learn more about this one. So it's all about this topic. If you have any question, अच्छा वन थिंग कि बेटा ये जो सेशंस हैं रिपीटेडली चलते रहेंगे, कल भी है उसके बाद भी है। आपको मेरे टीचर्स हैं सर अकरम खत्री हैं जो मेरे टीचर हैं जो आपको ज्वाइन करेंगे, सर अली कुरैशी हैं जो मेरे क्लास फेलो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से, वो आपको ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा हैं, ही इज माय क्लास फेलो, ही इज आल्सो लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी, वो आपको ज्वाइन करेंगे। So these all, mashallah, you all will be very benefited from this platform. So you have to be connected with this Afsar classroom to learn much and more regarding different topics. Arslan है, वो पंच में है, lecturer हैं, he is also my junior from Sin University. So we all are trying our best to give you information to make your concepts clear. और ये ऐसा टॉपिक था ड्रग रिसर्च का which you all should know. हम सबको तो पता है कि हमने ड्रग्स देखी है कैबिनेट में, लेकिन कॉन्सेप्ट से लेकर कैबिनेट तक उन्होंने कितना सफर किया है, कितना उन्होंने जो है एक जर्नी, वो हम सबको मालूम होने चाहिए। बीइंग फार्मासिस्ट वी शुड हैव द कॉन्सेप्ट्स क्लियर रिगार्डिंग दिस वन। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अच्छा बेटा, आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये जो पेज मैनेजर है मिस्टर अफसार कुरैशी, ही इज आल्सो माय स्टूडेंट एंड ही वाज वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट माशाल्लाह। ये एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था जिसका ये इतना बड़ा आइडिया माशाल्लाह उस कोविड की सिचुएशन में इतना बड़ा आइडिया लेकर आना, ऑल ओवर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना, दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो अफसार को अगेन मैं कंग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा, थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। और ये सिंध यूनिवर्सिटी में मेरा क्योंकि लम्ब से पहले आई वाज लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, वहाँ पर मैं लेक्चरर था, तो वहाँ पर ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था जिसकी वजह से माशाल्लाह ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे स्टूडेंट्स ही लेकर माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। वी ऑल हैव जस्ट पे आवर अटेंशन टू लर्न मच एंड मोर। दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।